हैदराबाद बेगमपेट के आईटीसी काकतिया में सीआईआई का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। सीआईआई के सालाना इजलास में तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना में पिछले 6 सालों के दौरान आईटी के शोबे में हुई तरक्की से मुताल्लिक तफसीलात पेश की। साथ ही उन्होंने मरकज के तरीक़ेकार पर भी नाराजगी जाहिर की। केटीआर ने कहा कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए मरकज ने 60 एकड़ अराजी की मांग की थी, जबकि हमने 150 एकड़ अराजी फराहम की है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है। had announced information technology investment regions in the country. One in Hyderabad, one more in Bangalore, I think one more in Vizag, another one in Odisha. 6.5 years, no decision gets made. No discussion on whether or not they will move forward with ITIR. And eventually, the Honorable IT Minister comes for an election campaign here and then goes on to announce that it has been scrapped. In spite of our numerous requests, in spite of detailed project reports being submitted, in spite of the well-intentioned, well-meaning efforts from the state government, unfortunately, we have not received support. But had ITIR been grounded and had central government invested more in creating infrastructure in our state, I think we would have created a couple more lakhs of employment at least. The central government also promised, as part of the Andhra Pradesh Reorganization Act, a steel factory, an integrated steel plant at Bayaram in Warangal district, erstwhile Warangal district of Telangana. Unfortunately, not an inch has moved in spite of multiple requests from our side. The central government also had promised a rail coach factory in Warangal again. In spite of state government submitting all the details, giving out more than the land that was required. 60 acres of land was asked. We gave 150 acres of land. But unfortunately, again, मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए 150 एकड़ अराजी की निशानदेही की गई है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत तेलंगाना में कोच फैक्ट्री कायम करने के बजाय उत्तर प्रदेश और गुजरात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। रियासती वजीर ने इसके लिए तेलंगाना बीजेपी एमपीज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बीजेपी एमपीज तेलंगाना को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి 20 ఏళ్ల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నా మా విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీని ఇవంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంత మొండిగా వ్యవహరిస్తుంటే సిగ్గులేని ఈ ఎంపీలు, ఆ బండి సంజయో ఇంకో అరవిందో వీళ్ళందరికీ ఎందుకు ఏమర్థమవుతో లేదో, కిషన్ రెడ్డి గారికి ఏందో అది అవగాహన లేక అవగాహన ఉండి మాట్లాడుతున్నారా పిచ్చి పిచ్చిగా. వాళ్ళు ప్రతిపక్షంగా మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే ఎట్లా? వాళ్ళు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోరు, విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోరు. చాలామంది చనిపోయినారు, దాన్ని మోసం చేస్తున్నారు. నేను దానికోసం ధర్నాలు చేశాను, రాస్తారోకలు చేశాను. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, బీజేపీ వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కటి కూడా నిలబెట్టుకోలేరు। काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वरंगल के रुकने पार्लियामेंट ए दयाकर और रुकने असम्बली नरेंद्र ने काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान शाहरा पर धरना दिया गया। एहतजाजी एमएलए और एमपी के हामियों ने मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद ने मरकज का अलामती पुतला नजर आतिश किया। रुकने पार्लियामेंट दयाकर ने कहा कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इजाफी शुदा पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद के मंचरियाल में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। बंद के पेश नज़र ऑटो ड्राइवर्स ने रैली निकाली और ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडर ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का मरकज से मुतालबा किया। रियासत की टीआरएस हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का काम कर रही है। बीजेपी ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने यह बात कही। रामचंद्र राव ने आज इंदिरा पार्क पहुंचकर इंदिरा पार्क वॉकर्स एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर लक्ष्मण भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर के कई महकमों में मुलाजमीन की खाली असामियां हैं। टीआरएस हुकूमत खाली असामियों को भर्ती करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से कई तालीम याफ्ता अफराद बेरोजगार हो गए हैं।
तेलंगाना में कोरोना के 166 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रियासत में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल एक ही दिन में 149 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,99,572 हो गई है। रियासत में 1,639 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 830 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 27 नए केसेस दर्ज हुए हैं। शहर हैदराबाद के तकरीबन 54% अफराद में कोरोना से जंग लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं, यानी शहर के 54% अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। सीसीएमबी और भारत बायोटेक के हालिया सर्वे में ये बात सामने आई। सीसीएमबी के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने हैदराबाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अगर आवाम को कोविड टीका दिया जाता है तो 80-90% आबादी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एहतियाती इक़दामात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। It was actually initiated also in very record time. When we discussed in CCMB that we should do this in Hyderabad and let's do one of the biggest sero surveillance in the city so that we understand what level of sero positivity we have. So yes, you just heard, and I think you have been given the press release. Around 54% of the Hyderabad population shows sero positivity, which is a little bit higher national average, and which is expected from the big cities where there is density, there is activity, and we are going through now almost 1 year this pandemic. And also it also shows that if so many people have antibody, that means there is a protection that has been launched, and which is also matches with the findings that there are not many reinfections happening. So ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन व सदर तंजीम बिनते हरम अकीला खामोशी ने आयशा खुदकुशी मामले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी और से बेपनाह मोहब्बत करना इस्लाम के खिलाफ है। का वाक़या हुआ है आयशा आरिफ का, तो उसमें जो वजूहत बताई गई हैं कि ये वो लड़के के चाल चलन भी ठीक नहीं थे। सिर्फ उसको एक ही एंगल से देखना कि वो जहेज़ का मुतालबा कर रहे थे, ये तो हकीकत से अलग है। और बात ये कि वो लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसकी जानिब हमको बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। जहाँ जहेज़ को एरेडिकेट करने की ज़रूरत है, वहाँ अखलाक को संवारने की भी ज़रूरत है। अगर हम बहैसियत पेरेंट्स अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाने में कामयाब होते हैं तो हमारी बेटियां नेक और पाकबाज बन सकती हैं। और जो ये बात आयशा के बारे में बताई गई है कि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी जुदाई या उसका ताल्लुक़ दूसरे से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो ये भी एक गैर इस्लामी अमल है। क्योंकि इस्लाम में हमको ये बताया गया है कि दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना है, और मोहब्बत के भी क़ायदे और लिमिट्स बताए गए हैं। मुसलमान की जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह से शदीद होती है। मुसलमान की जो मोहब्बत होती है, जो इताअत का जज्बा होता है, वो अल्लाह के रसूल से ज़्यादा होता है। इन रिश्तों से हटकर अगर दुनिया का कोई रिश्ता, जो कि ये जो दुनिया जिसको कि फ़ना होने का है, इसके जो रिश्ते होते हैं उसमें अनलिमिट जाने का हमको हुक्म ही नहीं है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी से है और वो गैर शरई हरकत करता है तो आपको उसको समझाने, अफ़हाम तफ़हीम करने की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो आप दूरी इख्तियार कर सकते हैं। उसके लिए आप खुद शरीयत से दूर हो जाएं, ऐसे शख्स को बर्दाश्त करते रहें जो कि शरीयत का पाबंद नहीं है। फिर आप इतना चले जाएं कि आप खुद अपना ईमान ना बचा सकें, अपनी जान ना बचा सकें। ये तो इस्लाम की तालीमात के मगायर। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी 6 मार्च को कर्नाटक के इलाके बीजापुर में मुनक्किद अवामी मीटिंग में शिरकत करने वाले थे। मकामी पुलिस ने अवामी जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया। बीजापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि असदुद्दीन अवैसी को 1 हफ्ते के लिए बीजापुर में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। एमआईएम लीडर रियाजुल हसन आफंदी ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम का कल बीजापुर में एक दौरा था, लेकिन आज दारुस्सलाम में एक नोटिस दी गई कि आने वाले 7 दिन तक सदर मोहतरम वहाँ पर नहीं आ सकते। तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे मुल्क में
हम आज़ाद मुल्क के हैं, हमारे को राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ हमारे राइट्स हैं, तो ये नोटिस देना एक सरासर नाइंसाफ़ी है। जो सबब बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कोरोना के वजह से नहीं आ सकते। तो जब कोरोना का जिस टाइम पे पीक पे दौर था, उस दौर में इंटर स्टेट के लिए परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन आज ये तमाम चीज़ नहीं है। कोई भी सिटीज़न हिंदुस्तान के किसी भी शहर में कभी भी आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये जो मुखालिफ जमातें हैं, बीजेपी हो, बिलखुसूस कांग्रेस, ये जमातों को इतना खौफ, इतना डर है कि मेरे सदर के आने से इनको इनकी नींद उड़ जाती है। ये लोग अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को अपना इंस्ट्रक्शन देकर जो है रोकने की नाकाम साजिशें करते रहते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।